Good morning and warm welcome to you all. I am Vaibhav, your host for today. Our topic for today is role of personal financial planning. It shall be taken by Mr. Puneet Ghagreja. He shall cover difference between savings and investment, overview on various modern products, points to be kept in mind before buying an financial product, power of compounding, followed by question and answer session. Our agenda for today is virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Mr. Puneet Ghagreja, question and answer session, and last closing session. About Sadgun Sangh. Sadgun Sangh conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with a mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. A brief introduction of Dr. Sundar Kataria, designation and organization, Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. His academic qualification, Doctorate in Business Management, Mechanical Engineer. His experience, Rajasthan Atomic Power Project, India's first nuclear power plant, RAPP at Rawatbata, Kota, built by Indian engineers, work as nuclear scientist for 11 years and successfully completed and commissioned the plant. Engineers India Limited, first batch of engineers to develop Bombay High offshore oil and gas fields, mega offshore complex platform, trunk and submarine pipelines, underwater inspection, and indigenization oil and gas equipment, etc. Det Norsec Versatile's world largest classification society, worked for 17 years at various capacity for the certification of fixed offshore installations, submarine pipelines, onshore projects, and personnel qualification, ICS. He is founder of India's first certification conformance assessment body established in the year 1999, provider of total quality solution, certification of management system, ISO, inspection, testing, and training qualification of personnel. His achievements and awards: received Lifetime Achievement Award for the contribution for the corrosion technologies from NACE International by NIGIS under NACE USA. Social worker, protection of life, asset, environmental and safety. Now I request Dr. Kataria to virtually inaugurate the session. शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः. Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra.
A brief introduction of our today's keynote speaker, Mr. Puneet Gagreja, designation organization, founder, Gravity Investment Services. His academic qualification, MBA in Finance from ICFAI Gurgaon, followed by BCom from Symbiosis College of Arts and Commerce, Pune, Empire Register Mutual Fund Distributor. His area of specialization and experience, resigned as regional manager in UTI MF in the year 2015. Before that, worked with the UTI MF for the last 8 years. Post MBA, joined People Research at Gurgaon as a research analyst. After resigning from UTI, he started his own venture with an aim of spreading financial literacy to the masses. Please welcome Puneet sir. Over to you, sir. Hello. I welcome you all on the behalf of Gravity Investment Services on this session of role of personal financial planning. Let me share the presentation. It's visible, right? Yes, sir. It's visible. Okay. So I will take a session on introduction of personal financial planning. Now, this word personal financial planning is basically, it's more about personal and less about financial planning. What we normally do is basically, we sit with our clients, understand their requirements, that what are their requirements, because, in financial world, there is no product like, one size fits all. It all depends upon the circumstances, earning levels, age, and, many circumstances depends upon what sort of products you should purchase and what not. So I will focus on the, this will be the flow of presentation of today. Initially, we will understand what's the difference between savings and investment, because many people, get confused between both of them. They use it interchangeably. And then what all different modern products are there in the, industry, and we must have that. We will talk about that. And then some, key light upon what is the cost if we delay our investment process, and what you should take away from the presentation. So let's start the presentation with the difference between savings and investment. See, in my last 15 years of experience, what I have understood is basically these all financial products, I can divide this all into 3 parts. So let's understand that. First, I can classify these under protection products. Now, what are these protection products? These are basically products, which gets activated only upon occurrence of particular event. For example, कि भाई जैसे what I want to say is कि ये product काम तभी आएंगे जब कोई event होगा. For example, let's say इसके जैसे the examples are, let's say term plan. अब term plan की requirement कब पड़ेगी? Only when a person is not around. Some mishappening happens, and then only this product has a use. Likewise, a mediclaim. A mediclaim कब काम आएगा? When a person gets, inducted into a hospital for at least 24 hours. Then only this product, is of use. Otherwise, this is of not much use. And then there are n number of. Likewise, when you get, insurance for your vehicle, for your cars, they are of use only when, some accident happens. Otherwise, you have to pay insurance premium on a yearly basis. And sometimes, it comes into your mind कि यार इसको regularly pay करना भी है कि नहीं. क्यों? क्योंकि वो you don't get used every year out of it. So these are the first kind of products जिसको I classify like protection products. Next is saving. Savings. Will anybody help me out कि Hindi में what we say, what we normal terminology, what we call as savings product. If somebody can write in the chat box so that savings product in normal circumstances, in normal communication, we say that बचत. कहते हैं कि यार बचत कर रखी. Now, what are these savings products? Savings product, how I define is basically in this product,
you get a guarantee. In this, the returns are guaranteed, but normally what happens is, they are in the range of 3 to 7%. Now this is the, catch. Returns are guaranteed, but then they are in the range of 3 to 7%. And in most cases, they are taxable. In some cases, they are tax-free. So if you consider in India, the inflation normally is around, 5 to 7%. And then if you are in the tax bracket, at the end of the day, you actually don't get much out of it. So the types, the examples of savings products can be, FD, RD, PPF, NSE, endowment plans of insurance, and many more. So now earlier what happened was, in FD, in PPF, people who are of higher age, they will, reconcile with this. Earlier, this used to give somewhere around 10 to 12%. Then these products were actually very good, because if you are getting 10 to 12% and post inflation, if something is, remaining in your hand, then it's very good. तो पहले क्या होता था कि लोग FD, RD, PPF करके बड़े सेटिस्फाइड होते थे कि नहीं, वी हैव डन अ गुड थिंग. एंड एक्चुअली क्योंकि व्हेन यू गेट 10 to 12% रिटर्न ना, तो पैसा 6 से 8 साल में डबल भी हो जाता है. So that's actually very good. And now let's talk about the third kind of products. Those are investment products. Now, basically, what is the difference between savings and investment? People usually, use these terms interchangeably. कई बार वो कहते हैं कि मैंने सेविंग कर रखी है, कभी कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेविंग है या इन्वेस्टमेंट. अब नाउ इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस क्या होगा? When people are using it interchangeably, तो many a times it happens कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सेविंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है. Now, how I define is basically, इसको normally I tell them with an example. जैसे when you go to a restaurant, हमेशा मेन्यू में 2 आइटम्स लिखे होते हैं, एक होता है दाल फ्राई, एक दाल तड़का. दाल फ्राई और दाल तड़का में बेसिक फर्क क्या है? तो बहुत ज्यादा देयर इज नो डिफरेंस, बट क्या होता है कि वो दाल फ्राई में जैसे ही तड़का लगता है, वो दाल तड़का बन जाती है. वैसे ही सेविंग्स प्रोडक्ट में जैसे ही थोड़ा सा रिस्क का तड़का लगेगा, वो इन्वेस्टमेंट बन जाए. ये भी लॉन्ग टर्म होते हैं, सब कुछ होते हैं, पर इसमें एक वॉलेटिलिटी का तड़का होता है, एक रिस्क का तड़का होता है. और अगर इसमें मैं बोलूंगा कि इसमें रिस्क का तड़का होता है, तो इसमें जो रिटर्न्स होते हैं, अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो रिटर्न्स मार्केट लिंक. अब वो मार्केट का मतलब ये नहीं है कि आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट. इसमें हर तरह के मार्केट आते हैं. मार्केट जैसे कि प्रॉपर्टी मार्केट, गोल्ड मार्केट, सिल्वर मार्केट, एवरीथिंग विच इज मार्केट ओरिएंटेड, जिसमें कहीं पे भी रिटर्न्स जो है वो गारंटीड नहीं है. तो बेसिकली इसके एग्जांपल्स, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स फॉर दिस? जो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है इंडियंस का, दैट इज इनटू प्रॉपर्टी, फॉलोड बाय गोल्ड, सिल्वर. थोड़ा बहुत पैसा, अब चूंकि आफ्टर कोविड मेनी डेमेट अकाउंट्स आर ओपन, तो थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक मार्केट में है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में है. PMS, AIF आर वेरी न्यू थिंग्स फॉर एज ऑफ नाउ. सो दिस इज बेसिकली, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा यूनिवर्स जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, उसमें क्या क्या आता है. तो उसमें प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स आते हैं, सेविंग्स प्रोडक्ट आते हैं, और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं. और इसको आप एक बार, इफ यू वांट टू टेक अ पिक्चर ऑफ इट, यू कैन टेक इट. क्योंकि मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, इफ समवन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू यू एंड स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट द प्रोडक्ट्स, वो कई बार खुद कंफ्यूज होता है और कई बार कंफ्यूज कर देता है. तो इफ समथिंग, इफ दिस थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड, तो आपको पता रहेगा कि भाई मैं जो व्हेन आई एम एंटरिंग इनटू अ प्रोडक्ट, तो व्हाट शुड बी माय एक्सपेक्टेशंस. वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So if you find this, slide useful, you can write in the chat box why. चलो, अब नाउ व्हाई वी शुड इन्वेस्ट. भाई सेविंग तो एवरीवन डू इज ना, सबके पास यू हैव ए सेविंग अकाउंट. उसमें अगर ज्यादा दिन पैसे पड़े रहते हैं, तो आपको भी लगता है लेट्स डू एन FD. सेविंग तो हर कोई करता है. अब अपने को ये जो है, अपने को व्हाई वी शुड इन्वेस्ट. जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हेल्प्स अस इन अचीविंग आवर फाइनेंशियल गोल्स. जस्ट बिकॉज इन दीज डेज अपनी जो इच्छाएं हैं, आर एक्सपेक्टेशंस, आर एस्पिरेशंस आर टू मच, कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है. तो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार वो जो सेविंग्स प्लान्स होते हैं, वो आपके कई फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतने मददगार साबित नहीं होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं. इन लॉन्ग टर्म्स इट बूस्ट योर वेल्थ. जैसे लोग कहते हैं ना कि यार वो वेल्दी पर्सन, वेल्दी क्यों है? कि उन्होंने वेल्थ बनाई. और उन्होंने वेल्थ कैसे बनाई है? उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ बनाई है, सेविंग करके. मतलब मैंने बहुत कम लोग ऐसे सुने जो FD करके बोलते हैं कि हमने बहुत वेल्थ बना ली FD करके.
पर हाँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके, गोल्ड में इन्वेस्ट करके, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कई लोगों ने वेल्थ बनाई है। इट गिव्स यू सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि भाई अगर इन केस इफ यू हैव योर इन्वेस्टमेंट डन, you know you have money, so that gives you a sense of security. And in case if someone wants to be financial independent at a certain age, तो investments are very very necessary. तो अब ये तो हो गया कि भाई अपने को इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, अब ये इन्वेस्टमेंट करना कहाँ पे है। तो अगर इफ यू गो बाय द पास्ट, फ्रॉम लास्ट 42 years, जो रिटर्न्स रहे हैं बैंक एफडी, आई हैव टेकन ओनली दोज प्रोडक्ट जिसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा है। तो बैंक एफडी का पिछले 42 years में द एवरेज रिटर्न इज 8.08, गोल्ड इज 8.85 एंड इक्विटी दैट इज सेंसेक्स इज 15.68। एफडी एज ऑन डेट इज लेसर देन दिस, बट हाँ इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे इंडिया में कम हो रही है। एंड एज जैसे जैसे वी ग्रो into a developed economy, this inflation will go even lower. But still, post tax and post inflation, if your returns are not higher than those two figures, then you should reconsider what. तो ये तो हो गया कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, और ये स्लाइड क्लियरली बोल रही है कि द मैक्सिमम रिटर्न जो बैठा है इन लास्ट 42 years इज इनटू इक्विटी। पर इक्विटी के साथ हमेशा एक डर मन में रहता है कि ये तो बैठ गया, व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या हो। तो पहले अपन ये समझते हैं कि पिछले 42 years में ये रिटर्न आया क्यों, क्योंकि अगर ये क्लियर होगा क्यों आया तो शायद होता है ना कि इफ यू अंडरस्टैंड द पास्ट इट्स इजियर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो अपन देखते हैं कि ये रिटर्न आया क्यों। इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक एग्जांपल समझना पड़ेगा कि इनके आप कोई भी एक शॉप पकड़े, लेट्स से देयर इज अ मिठाई शॉप, स्वीट शॉप। अब स्वीट शॉप वाले के लिए अपन समझने के लिए मान लेते हैं कि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सेल करता है, दैट इज काजू कतली। एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है, वो काजू कतली बेच रहा है, और समझने के लिए कर लेते हैं कि वो 800 रुपीज kg है। अब 800 रुपीज kg में अगर वो 1 kg काजू कतली बेच रहा है और पूरे साल के अंदर उसने 1000 kgs ऑफ काजू कतली सेल करी है, तो पूरे साल के अंदर उसका बिजनेस हो गया 80 lakhs का। इज इट ओके? 800 रुपए की काजू कतली 1000 किलो उसने पूरे साल में बेची, तो पूरा उसका जो टोटल सेल रही पूरे साल की, दैट इज 80 लाख रुपीज। अब सपोज अभी मार्च आएगा, मार्च में उस तक उसने 80 लाख की सेल किया। 1 अप्रैल को वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट ईयर आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्स लेट से बाय 50%। ठीक है, एक बिजनेसमैन है, वो सोच सकता है कि मेरे को मेरा बिजनेस अगर नेक्स्ट ईयर 50% से इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप उसको लॉजिकली देखेंगे कि अगर उसको 50% से अपनी सेल को राइज करना है तो उसके पास दो तरीके हैं जो मुझे समझ आते हैं। पहला तरीका ये है कि वो जो 800 रुपीज kg की काजू कतली सेल कर रहा है उसको 1200 कर दे। तो उसको पता है मैं 1000 किलो तो बेचता ही हूँ, तो ये 1 करोड़ 20 लाख की सेल हो जाएगी मुझे मेरी नेक्स्ट ईयर के अंदर। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि भाई वो कुछ मार्केटिंग करे, सेल्स करे, अपना स्टाफ बढ़ाए और किसी भी तरीके से नेचुरली जो सेल है वो 1000 kgs की जगह 1500 का। तो जिससे क्या होगा कि जो 1500 kgs वो बेचेगा और वो 800 की रेट से ही बेचेगा, तो वापस 1.2 करोड़ की उसकी सेल हो जाएगी। तो ये दो ही तरीके होते हैं इकोनॉमी में आपको अपनी सेल, आपको अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने के। ऐसा ही सेम इकोनॉमी के अंदर भी होता है। इकोनॉमी के अंदर भी क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है इन्फ्लेशन, जिसको अपन प्राइस राइज के टाइप से समझते हैं कि ये इन्फ्लेशन है, रेगुलरली दाम बढ़ते हैं, वो जो दाम बढ़ते हैं उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन। एंड देन द सेकंड पार्ट कि एक जीडीपी ग्रोथ होती है। जीडीपी ग्रोथ क्यों होती है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी और चीजें हो रही है जिसकी वजह से एक जीडीपी ग्रोथ आती है। और हम मान के चलते हैं कोई भी देश, जैसे अभी मैंने एक शॉप का एग्जांपल दिया, एक शॉप की ग्रोथ कैसे डिसाइड होगी कि वो टोटल सेल कितनी बढ़ा रहा है, वैसे ही एक कंट्री अपनी जीडीपी को कितना ग्रो कर रही है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लेशन एंड द जीडीपी ग्रोथ। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लास्ट 40 ईयर्स का मैंने 10 ईयर्स का डेकेडल का ये एक चार्ट बनाया है। दिस चार्ट सेज कि 1981 से 1990 के अंदर अपना जो इन्फ्लेशन था दैट वाज 8.6 और जीडीपी ग्रोथ थी दैट वाज 5.6। अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो दिस कम्स टू 14.2। नेक्स्ट अपन 10 ईयर्स में जाते हैं, दैट इज 91 to 2000। उसके अंदर जो जीडीपी ग्रोथ थी दैट वाज 5.6 एंड इन्फ्लेशन वाज 9.1। नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ थोड़ी बढ़ी एंड इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल हुई, बट दोनों का सम टोटल वापस बन गया 13.9। और अभी जो लास्ट 10 ईयर्स निकली, जो लास्ट डेकेड निकला है, दैट इज फ्रॉम 2011 to 2020, इसमें जीडीपी ग्रोथ वाज 5.3 और जो इन्फ्लेशन था 6.3। तो इनका भी अगर मैं सम टोटल करता हूँ दैट इज 11.6। अब आप समझेंगे कि अपना देश मतलब इंडिया एज अ होल
is basically growing at the rate of 11 to 14%। अब अगर देश ही इस रेट पे ग्रो कर रहा है और अगर वहां पे उसके अंदर चलने वाले बिजनेस अगर इस रेट पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या लगता है वो सर्वाइव भी कर पाएंगे? और अल्टीमेटली दे हैव टू शट डाउन देयर बिजनेस। तो यही होता है किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जो बिजनेस उतना नहीं कर पाते हैं वो देर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे शट देयर बिजनेस एंड मूव आउट ऑफ द बिजनेस। और जो अच्छा कर पाते हैं वो टिके रहते हैं। अब अपन ने लास्ट स्लाइड में बात की थी कि भाई ये सेंसेक्स ने 15.68% दिया है। तो इसका क्या मतलब है? सेंसेक्स के अंदर ओनली होती है 30 बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज, 30 टॉप कंपनीज। तो अगर वो इकोनॉमी से ज्यादा बेटर नहीं कर पाएंगी तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम हमेशा मानते हैं कि आपको बस ये देखना है कि आपका देश में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है और एक इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है पता करना। आप गूगल में जस्ट प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए ये नहीं है कि ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं। जीडीपी ग्रोथ की बात करें, अब नाउ यू कैन, दिस इज जस्ट अ वेबिनार, बाकी नॉर्मली सेमिनार्स में आई आस्क माय ऑडियंस कि भाई आप खुद प्रेडिक्ट करें कि क्या लगता है इंडिया में आप रह रहे हैं, आपकी जो भी एज है, तो क्या लगता है हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है अगले 5, 10, 15, 20 सालों तक, और इन्फ्लेशन क्या रहने वाली है। तो आप खुद, द ऑडियंस हु इज लिसनिंग टू इट, वो खुद इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी इंडिया के अंदर और इन्फ्लेशन क्या रहेगा। इन दोनों फिगर को जोड़ें और ये मान के चलें कि उतना रिटर्न तो आपको सेंसेक्स दे ही देगा। मैं वापस कह रहा हूँ, सेंसेक्स दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंसेक्स बीएसई एनएससी में लिस्टेड सारी कंपनीज दे देंगी। ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द कंपनीज विच वोंट बी एबल टू गिव दिस काइंड ऑफ रिटर्न्स, और दे वोंट बी एबल टू ग्रो दिस मच, दे हैव टू शट डाउन देयर बिजनेस एंड मूव आउट। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको बहुत सारे नाम पता है, वो शट डाउन देयर बिजनेस एंड मूव आउट। तो इसलिए वो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप इंडिया में, इंडिया मतलब इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। और अगर मैं बात करता हूँ पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन, अगर ये रिटर्न बैठता है तो आई बिलीव यू आर इन दी सेफ हैंड्स, राइट। अब जब ये समझ आ रहा है कि इंडिया में ये इस तरह की सिचुएशन है और एक अपने को ग्रोइंग इकोनॉमी अपने सामने दिखती है, तो ग्रोइंग इकोनॉमी में आपको क्या करना चाहिए? ग्रोइंग इकोनॉमी में आपको क्या करना है कि इधर डू बिजनेस और इन्वेस्ट इनटू समवन अदर्स बिजनेस। क्योंकि क्या है कि भाई एवरी वन कैन नॉट डू बिजनेस, राइट, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइबिलिटीज है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बट देन यू हैव एन ऑप्शन कि भाई अगर आप बिजनेस करते तो क्या करते, और क्या करते उसकी कंपनीज अगर लिस्टेड है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम बहुत ही सिंपल कहते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है, वेल्थ बनानी है, तो या इधर डू बिजनेस या फिर किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अब ये जो मैंने आपको बोला कि बहुत सारी कंपनीज जो अच्छे से नहीं कर पाती हैं, दे हैव टू एक्चुअली मूव आउट ऑफ द बिजनेस, राइट। तो अब आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई जो बिजनेस के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इज इट राइट और रॉन्ग? दैट्स एक्चुअली वेरी टफ टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे डिसाइड होगा कि मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सही है कि गलत। इसमें आपकी मदद करने के लिए पिक्चर में आते हैं म्यूचुअल फंड्स। अभी म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड बेसिकली कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड एक पूल है। ये आप सब जैसे एक इन्वेस्टर्स हैं, दे पूल देयर मनी, दे गिव इट टू सम फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, अराउंड 44 कंपनीज हैं जो ये लोगों के लिए पैसा मैनेज करती है। और इसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, टाटा, मतलब जो भी बड़ा नाम आपको पता है उसमें मैक्सिमम काफी सारे तो ये काम करते हैं। जस्ट बिकॉज उनकी इमेज ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, एंड देन दे चूज एंड इन्वेस्ट सम सिक्योरिटीज, दे पुट दैट पूल्ड मनी इनटू दैट। वो जो पैसा उन्होंने पूल किया है, इकट्ठा किया है, वो सिक्योरिटीज में डालते हैं, उससे कुछ रिटर्न्स जनरेट होते हैं, और वो रिटर्न्स जो है वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन होते हैं। आपके दिमाग में ये बिल्कुल रहना चाहिए कि ये जो रिटर्न्स है शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट जो भी होता है, दीज फंड मैनेजर्स आर बेसिकली दी एसेट मैनेजर्स। आप लोगों ने अपना पैसा उनको दिया है, पैसा क्या होता है? पैसा इज योर एसेट। तो ये लोग आपका एसेट मैनेज करते हैं अपनी कॉम्पिटेंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अब जो उनका इतने साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दे बाय सम सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स ही नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जैसे मैंने बताया कि इट्स पूल, और पूल के अंदर आपने बोल रखा है कि हमारे पैसे को शेयर्स में लगाएं, डेट में लगाएं, मतलब एफडी में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, सिल्वर में लगाएं। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं।
उस चीज से रिटर्न्स गेट जनरेटेड एंड इट्स गेट्स पास बैक टू इन्वेस्टर। दिस इज द म्यूचुअल फंड प्रोसेस। तो आपको जो मैं कह रहा था कि आपको कौन सी कंपनी से पैसा लगाना है, तो आपको इतना दिमाग उस चीज पे नहीं लगाना है। आप जो आपका काम कर रहे हैं आपको वो अच्छे से करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, किसी अच्छे फंड मैनेजर्स को दे ढूंढ के उसको देना है, एंड देन दे विल जनरेट रिटर्न्स एंड पास इट बैक टू यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका पैसा लेके वो शेयर मार्केट में लग रहा है, तो उस टाइप के फंड्स को हम बोलते हैं इक्विटी फंड्स। अगर वो पैसा लेके वो डेट मतलब एफडी टाइप है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इन सब में लगा रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं डेट फंड्स। अगर वो पैसा इकट्ठा होके गोल्ड में लग रहा है तो उसको कहते हैं हम गोल्ड फंड। वैसे सिल्वर फंड होता है। अब इंडिया में ये कॉन्सेप्ट बड़ा नया है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये पॉपुलराइज हो रहा है कि आपका पैसा इकट्ठा करके वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको बोलते हैं REIT, दैट इज रियल इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर करनी है। There are fund managers who will manage your money, generate some returns and pass it back to you। तो ये मैंने एक बेसिक बताया आपको कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। और अगर वो पैसा इक्विटी में लग रहा है, तो इक्विटी में लगने की वजह से वो जो इक्विटी मार्केट का रिटर्न होगा वो आपको पास ऑन करेंगे। अब ये इक्विटी फंड्स के बारे में तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, उनको लगता है म्यूचुअल फंड्स बोला मतलब इक्विटी मार्केट, राइट। तो जैसे ही अगर बात चलती है कहीं पे भी कि भाई म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, मतलब उसको पता है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की बात आ जाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक मिसकंसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मार्केट ही होता है। आज की तारीख में म्यूचुअल फंड्स आर मैनेजिंग समवेयर अराउंड 50 लाख करोड़ ऑफ रुपीज। आउट ऑफ दैट ओनली 26 लाख करोड़ इज इनटू इक्विटी, रिमेनिंग 24 इज इनटू डेट। अब ये डेट क्या होता है? डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि डेट फंड्स क्यों जरूरी, क्यों? क्योंकि आप सब लोगों के पास एक सेविंग अकाउंट है जिसमें पैसा समवेयर अराउंड 3.5% पे सिर्फ रखा हुआ है। वो न तो अपने आप को इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। इनफैक्ट मैं अगर मेरी भाषा में बोलूं तो आई सिंपली से कि दैट मनी इज स्लीपिंग इन योर बैंक अकाउंट। और ये मान के चलें अगर पैसा सोता रहेगा तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जिंदगी भर नहीं काम करना चाहता हूं, तो आपको आपके पैसे को जगाना पड़ेगा और उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचें कि नहीं मैं अभी सेविंग्स में ही सेटिस्फाइड हूं, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो सेविंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डेट फंड्स। डेट फंड्स भी होते हैं, अपन डेट फंड्स के बारे में बात करेंगे। इक्विटी फंड्स के अपन खासियत के बारे में बात करते हैं कि इक्विटी में क्या होता है कि जो रिटर्न्स आते हैं दैट गेट्स कंपाउंडेड। अब ये कंपाउंडेड वर्ड सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर कई बार समझ नहीं आता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि कहते हैं कि वर्ल्ड में ही वाज द ब्राइटेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, वो खुद उन्होंने बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये अपने आप में आठवां अजूबा है जो यूं समझ नहीं आता है। आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, समझना थोड़ा मुश्किल है। पर ठीक है, जस्ट बिकॉज बीइंग ए ह्यूमन बीइंग लेट अस ट्राई इट कि भाई इससे होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट भला क्या है। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। उस कॉन्सेप्ट को हम फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं रूल ऑफ 72। इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये स्लाइड आपको बताएगी कि आप एक्चुअली कहाँ पे लैंड अप करने वाले हैं विथ ऑल योर सेविंग्स एंड ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। आप कहाँ पे लैंड अप करने वाले हैं। तो जो रूल ऑफ 72 है, ये बहुत ही सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप कुछ भी करें, सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें एक रिटर्न का आप एक एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में रखते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट से मुझे, लेट से आप बैंक में गए, बैंक से वाले पूछा, यू आस्क्ड देम कि भाई व्हाट इज द एफडी रेट करंटली। उसने बोला कि दिस इज 6%। तो आपको ये पता है कि आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको न्यूमरेटर में 72 लिखना है और डिनोमिनेटर में जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है, लेट्स से इन दिस केस 6%। अगर आपको 6% मिलना है तो आपको ये समझ जाना है कि आपका पैसा 72 डिवाइड बाई 6 दैट इज 12। तो 12 मीन्स आपका पैसा जो है वो नेक्स्ट 12 ईयर्स में डबल होने वाला है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। रूल ऑफ 72 कुछ भी नया नहीं, सिंपल सी एक चीज बोल रहा है। वो बोल रहा है न्यूमरेटर में आप 72 लिखें और डिनोमिनेटर में जो भी आपको रिटर्न मिलने वाला है, वट एवर रिटर्न यू आर सपोज टू गेट, you have to write that in the denominator, divide 72 by that number, and what will be the answer will be the number in which your money is gonna get double। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने आपको एक बैंक का एग्जाम्पल दिया, बैंक में गए, आपने एक एफडी कराई और आपने वो एफडी 6% पे कराई। अब इसको समझने के लिए अपन मान लेते हैं कि देयर इज अ पर्सन जिसकी एज 25 ईयर्स है और उसके पास दो ऑप्शन, या तो एफडी करे या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करे जिसमें 12% रिटर्न मिलता है।
तो उसका डिफरेंस क्या होगा व्हेन ही इज गोना रिटायर, यानी कि लेट्स से नेक्स्ट 36 ईयर्स, मान लेते 24 एज पकड़ लेते हैं। तो अगर 24 की एज में कोई पर्सन गया, उसने 1 लाख रुपए बैंक एफडी में डाले जो 6% रिटर्न दे रहा है, तो अभी जो मैंने आपको रूल ऑफ 72 बताया वो ये बोलता है कि अगले 12 साल में पैसा डबल हो जाए। तो जब 24 में 1 लाख था, वो 25 ही एज पकड़ लेता है, 25 तो 37 में वो 2 लाख बन जाएंगे। आई बिलीव इट्स क्लियर। किसी को भी अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं, मैं अभी वापस एक बार एक्सप्लेन कर लूंगा। So your FD will become 2 lakhs at the age of 37. अब नेक्स्ट 12 ईयर्स में ये वापस डबल हो जाएगी, तो 49 में ये बन जाएगी 4 lakhs, राइट। 1 लाख की एफडी जो 25 साल में थी, वो 37 ईयर्स ऑफ एज में 2 लाख हो जाएगी, और 49 ईयर्स में 4 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट 12 ईयर्स दैट इज एट द एज ऑफ 61, ये 8 लाख हो जाएगी। यानी कि 25 में जो आप 1 लाख की एफडी करते हो, और मैं मान लेता हूं कि अगले 36 ईयर्स तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 6% ही रहा, तो आपका 1 लाख 8 लाख बन गया व्हेन यू आर एट द एज ऑफ रिटायरमेंट एज, आपकी एज 61 होगी। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बेसिकली आपने 1 लाख रुपए जो 25 साल की एज में लगाया, वो 61 ईयर्स में 8 लाख हो गया एट द रेट 6%। अब अगर मान लेते हैं, जैसे कि अपन ने पहले समझा है कि भाई इक्विटी के अंदर रिटर्न्स आर मोर देन 12%, अपन कैलकुलेशन पर्पज से उसको 12% ही पकड़ लेते हैं। तो अगर 72 को मैं न्यूमरेटर में रखूंगा और 12 को अगर मैं डिनोमिनेटर में रखूंगा, तो इसका ये मतलब है कि ये जो 1 लाख है, इसको 2 लाख बनने में लगेंगे 6 साल। 6 years में the money will get double. Why? Because the rule of 72 says when you put 72 in the numerator and 12% or 12 in the denominator, the answer is 6, and 6 means in next 6 years your money is gonna double. So a person who is at the age of 25 puts 1 lakh rupees into, let's say, into some fund which yields him 12%, so that 1 lakh will become 2 lakhs at the age of 31, right? And then in next 6 years, that 2 lakhs is gonna become 4 lakhs. So at the age of 37, this will become 4 lakhs. After that, 8 lakhs, 4 के 8 होंगे, 4 के 8 हो जाएंगे अगले 6 साल में, दैट इज 43 ईयर्स। 49 में 8 के 16 हो जाएंगे, और वो 16 लाख 32 लाख हो जाएंगे इन नेक्स्ट 6 ईयर्स, दैट इज एट द एज ऑफ 55। और एट द एज ऑफ 61, यानी कि रिटायरमेंट की एज में, वो 32 के 64 लैक्स हो जाएंगे। यानी कि वो 1 लाख रुपए अगर आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट में डाले जो आपको एक 12% का रिटर्न दे सकता है, तो आपका वो 1 लाख बन जाएगा 64 लैक्स एट द एज ऑफ 61। अब नाउ दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंड। आपका पैसा जितना जल्दी डबल हो सकता है, वो उतना ज्यादा बन के मिल सकता है एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। ये बहुत ही बेसिक चीज है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार यहाँ पे मुझे 6-7 मिल रहा है, वहां पे 10 भी मिल रहा है, तो 3% इज नॉट बिग। आई ऑल्सो एग्री, इन 1 ईयर इट्स एक्चुअली नॉट बिग, बट यू नो व्हेन 5-10 साल बाद जब वो कंपाउंडिंग क्रीप इन होती है, तब उसके बाद आपको समझ ही नहीं आता है कि वो पैसा कब कैसे ग्रो कर गया है। और इनफैक्ट अगर आप में से मैं कई लोग अगर जॉब में हैं, तो वो ये फिनोमिना एक्सपीरियंस करेंगे अपने पीएफ अकाउंट में। आप में से अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिन्होंने पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है पिछले 20-30 साल पहले, तो ये वो फिनोमिना एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में। और अगर आप में से कुछ लोगों की एसआईपी चल रही है जिसको 10-12 साल हो चुके हैं, तो अब वो ये फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने वैल्यू के अंदर। तो ये वही मैंने आपको शुरू में कहा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला है कि दिस इज द एट्थ वंडर। ये समझ नहीं आता, ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अब ये तो हो गया कि अगर मैंने वन टाइम पे ये 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। अब हमारे इसमें एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं SIP, दैट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें क्या करते हैं अपन, हर मंथ पैसा डालते हैं। हर मंथ पैसा डालने में मैं कहता हूँ ये सिर्फ 2000 रुपीज पर मंथ का एक जस्ट एग्जाम्पल है। एक मैंने मान ली कि एक आरडी कर रखी है 6% पे, और एक मैंने लेट्स से म्यूचुअल फंड की SIP कर रखी है 12% पे। अब आप देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर्स में अगर आप 2000 पर मंथ डालते हैं, 2000 पर मंथ इंटू 12 दैट इज 24,000। 24,000 अगर आप पर मंथ डाल रहे हैं, तो ये 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 1.2 लैक्स। 1.2 लैक्स अगर 6% की आरडी करते हैं दैट इज 1.4 लैक्स। और अगर वही रिटर्न 12% पे आता है, तो वो 1.6 लाख है। मैं अभी सिर्फ फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहा हूँ जो 5 साल लिखा हुआ है। अभी आप आगे कंसिडर दिमाग अपने आप दिमाग को वहां ना ले जाएं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ फर्स्ट, यू समझे, फर्स्ट बॉक्स की। फर्स्ट बॉक्स में क्या बोल रहा है कि 1.2 लैक्स 1.4 लैक्स बन जाएगा अगर 6% रिटर्न आता है, और 1.6 बन जाएगा अगर वो 12% रिटर्न आता है।
और मैं आपको सही बताऊं, 5 साल के लिए एक्चुअली इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने ही नहीं चाहिए, कोई बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद देखेंगे रिजल्टेंट फिगर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो अगर क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या जो इक्विटी में पैसा लगता है उसमें वॉलेटिलिटी का रिस्क होता है। तो बहुत छोटे टाइम, जैसे 5 साल इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल पीरियड, के लिए ये रिस्क लेना कोई बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका गोल जो दिखता है कि वो तो 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है और आगे का है, तो अब आप देखेंगे उसमें क्या फर्क आता है। मान लेते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट था 2,000 पर मंथ का, ये अगले 10 साल चलता है। तो अगले 10 साल में ये 2.4 lakhs विल बिकम 3.2 lakhs इन आरडी ऑफ 6% and 4.6 lakhs in a प्रोडक्ट विच इज yielding you 12% टर्न, तो वहां पे 4.6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब अगर यही 20 years होता है तो वो जो 2.4 का, आप तो 4.8 ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो जो 4.6 लैक्स था वो अब बन जाएगा 20 लैक्स। आप खुद देखें, टाइम डबल हुआ है, अपन ने रिटर्न भी चेंज नहीं किया है, लेकिन वो 4.6 का डबल नहीं हुआ है, वो लगभग 3 से 4 गुना हो गया है, दैट इज 20 लैक्स। और अब जो डिफरेंस है, एक आरडी एंड लेट्स से अ प्रोडक्ट विच इज यील्डिंग यू 12% रिटर्न, उन दोनों में लगभग डबल का फर्क हो चुका है। आपका इन्वेस्टमेंट वही चल रहा है, सिर्फ 2,000 रुपीज पर मंथ। यही चीज अगर 30 साल में करते हैं, तो अब आप देखें वो डिफरेंस कितना बड़ा हो। आपके जो प्रोडक्ट था जो 6% रिटर्न दे रहा था, वो 20.2 होगा, जो कि मैं कहता हूँ एक नॉर्मल दिमाग में वो भी खराब नहीं लगता कि अगर आपको कोई बोलेगा कि यार आपके 7.2 लैक्स की जगह आई विल बी गिविंग यू बैक 20 लैक्स, तो सुनने में वो खराब नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको कोई ये बोले कि सर उसकी जो थी ताकत कमाने की, वो 7.2 को 70.6 भी कर सकता था, अब वहां पे दिमाग थोड़ा बहुत चलना शुरू होता है कि यार व्हाट आई शुड डू। बाकी जब तक अपन पिक्चर नहीं देखते हैं, जब तक अब मैं आपको एक लाइन खींच के दे दूं और बोलूं कि ये बड़ी है कि छोटी, जब तक आपके सामने कंपैरिजन नहीं आएगा, यू कांट डिसाइड कि वो लाइन बड़ी है कि छोटी। उसके लिए कंपैरेटिव वैल्यू चाहिए होती है, कंपैरेटिव लाइन चाहिए होती है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप देखें 33 years में, तो वो 7.9 लैक्स के 1 करोड़ हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं, अगर आप में से सुनने वाले, अगर जिसकी एज अभी ये अलाउ करती है कि नेक्स्ट 33 years के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो यू नो टेक माय वर्ड्स, आराम से आप सिर्फ एक मंथली सिर्फ 2,000 की भी अगर एसआईपी करते हैं, तो अगले 33 years में वो 1 करोड़ बना के दे सकते हैं। और अगर वो पैसा कोई ऐसे प्रोडक्ट में रहता है जो 6% के आसपास रिटर्न दे रहा है, तो वो 25 लाख बनेगा। 25 लाख सुनने में खराब नहीं लगता है, पर इन्फ्लेशन के बाद 33 years बाद उस 25 लैक्स की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि साहब 1 करोड़ की भी क्या वैल्यू होगी, सही बात है, लेकिन हाँ मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि वो 25 लाख से ज्यादा हो। बस वो दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को भी पता है कि भाई इन्फ्लेशन रोज के हिसाब से काम कर रही है। तो दैट्स व्हाई अपन ये सेशन ले रहे हैं, दैट्स व्हाई अपन समझ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्ट। तो ये हो गया बेसिकली कि कंपाउंडिंग क्या करती है। अब जो मैंने बात की थी कि भाई ये तो चलो इक्विटी इक्विटी है, जो आप मैंने खुद नहीं कहा था कि दिस इज जस्ट 50% ऑफ द टोटल अमाउंट विच इज बीइंग इन्वेस्टेड इनटू म्यूचुअल फंड्स। तो बाकी का 25% कहाँ जाता है? वो जाता है साहब डेट फंड्स के अंदर। अब एक आदमी समझेगा कि डेट फंड्स की मेरे लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है। अब आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने 2 फोटोज लगा रखे हैं। ये फोटोज जो है, इसमें मैं टायर नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्टेपनी। अब ये जो स्टेपनी है, ये जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, तो मेरी कार में पिछले 10 साल से स्टेपनी पड़ी है और शायद एक बार भी काम नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या मेरे को वो स्टेपनी निकाल के कार चलानी चाहिए या स्टेपनी को मेरे को गाड़ी में रखना चाहिए? आई बिलीव मैक्सिमम ऑफ यू विल से कि नहीं, वो चीज स्टेपनी जो है वो हमेशा गाड़ी में रहनी चाहिए, जस्ट बिकॉज यू डोंट नो कि उसकी जरूरत आपको कब पड़ने वाली है, राइट? वैसे ही डेट फंड्स होते हैं, वैसे ही लिक्विड फंड्स होते हैं। और इन स्पेशली पोस्ट कोविड तो अपने को पता लगा है कि एक ये इमरजेंसी फंड का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबकी लाइफ में होना चाहिए। ये डेट फंड्स क्या होते हैं? इसमें कुछ भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। मैं फिर वापस बोल रहा हूँ, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आपने आज जो पैसा लगाया, आप उसको 3 दिन बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, आप एक दिन के अंदर भी कर सकते हैं और ये नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपके अकाउंट में आ भी जाता है। जैसे आम कई लोगों को लगता है कि भाई चूंकि म्यूचुअल फंड है तो स्टॉक मार्केट से इसका लेना देना होगा, लेकिन नहीं, इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यस, जैसे मैंने कहा कि इसका अपना मार्केट है, उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट बोलते हैं।
जीसेक मार्केट बोलते हैं, उससे इसका फर्क पड़ता है, और उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं ही होती है शॉर्टर एंड पे। थोड़ा टेक्निकल है, उसके लिए अपने को वन वन डिस्कशन करना पड़ेगा, पर हाँ अभी यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इसका जो रिटर्न्स है वो स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके अंदर लोवेस्ट इंटरेस्ट रिस्क होती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, और टैक्सेशन के बाद नॉर्मली ये एफडी से ज्यादा रिटर्न्स आपको देखे जाते हैं। ये सिंपल सी चीज है। अब ये तो मैंने बता दिया कि ये इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, पर इनकी यूटिलिटी क्या है, कि भाई ये क्यों मेरे पोर्टफोलियो में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए, ये उसमें काम आते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको पिछले एग्जांपल में ये भी बताया था कि अगले 3 से 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने का कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसा बहुत हाई लेवल पे कंपाउंड होकर दिखाएगा। तो कई आपके गोल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म इन नेचर। शॉर्ट टर्म इन नेचर गोल्स कैसे होते हैं कि साहब, अभी जैसे अपन अगर मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अभी सब जगह सेल लगी हुई है, और आप सबको पता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये दो ऐसे टाइम होते हैं कि जब दो टाइम सेल्स लगती हैं, और कई बार अपन जरूरत से ज्यादा भी परचेजिंग करके आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन उसकी प्लानिंग पहले से हो जाए। तो हम कहते हैं कि अगर आपको एनुअली शॉपिंग करनी है, जैसे अभी अमेजोन और ये सब भी क्या कहते हैं, वो बिग बिलियन डेज और सबसे सस्ते दिन और पता नहीं क्या क्या चीजें चलती हैं, तो बेसिकली उनका मार्केटिंग अटेम्प्ट रहता है कि भाई आप थोड़ा अपनी जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करें। तो ठीक है, एक एसआईपी उसके नाम की हो सकती है। एक एसआईपी आपके, भाई आपने, कई लोगों ने टर्म प्लान परचेज कर रखे होंगे, कई इंश्योरेंसेस परचेज कर रखे होंगे। उसके मैक्सिमम केसेस में हमने देखा है कि प्रीमियम जो है ना वो एनुअली आती है, और उसके यही टाइम होता है नॉर्मली जनवरी से मार्च के बीच में। अब जनवरी के मार्च के बीच में जब सारी प्रीमियम्स आपको पे करनी पड़ती है, तो कई बार आपका जो बजट होता है वो गड़बड़ा जाता है। हेलो। हेलो। चलो, तो मैं आपको यही बता रहा था कि इसके अंदर जो आपका एनुअल प्रीमियम है उसके लिए भी आप एक एसआईपी कर सकते हैं, छोटी सी, जितना भी आपका एनुअल प्रीमियम। ठीक है। एंड देन एनी अदर शॉर्ट टर्म गोल्स। और आजकल कई यंग जनरेशन को लगता है कि एवरी ईयर अपने को वेकेशन पे तो जाना ही है, तो वेकेशन पे जाने के लिए भी अपन एक एसआईपी कर सकते हैं, जो आपको पैसा इकट्ठा हो जाएगा 12 महीने में, लेट्स से 24 मंथ्स में, एंड देन यू कैन यूज इट टू गो फॉर योर वेकेशन। इस तरह के कोई भी अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो, तो उसके लिए आप डेट फंड की एसआईपी कर सकते हैं, और आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि आज की तारीख में एक काफी फेमस और काफी प्रमोट होता हुआ एक फाइनेंशियल, मॉडर्न फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। अब मैं बात करूंगा एक दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की। उसके लिए अपन समझते हैं एक कहानी। एक कहानी है मिस्टर टैलेंटेड की। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू हिम। जो मिस्टर टैलेंटेड है, जस्ट बिकॉज ही इज talented. He completed his post graduation in the age of 21, and he got placed into an MNC. Very good, no problem. अब 21 में जब उसका एमएनसी में जॉब लग गई है, एक डिसेंट इनकम हो रही है, तो 23 में वो एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के साथ बैठा, एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठा, और उसने अपनी गोल प्लानिंग कर ली। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। 26 की एज में उसकी शादी हो गई। बहुत ही बढ़िया। 26 की शादी हो गई, 28 में उनको एक बिटिया भी हो गई। वेरी गुड। उसके बाद 2 साल बाद उन्होंने एक एसयूवी परचेज करी लोन पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तो उन्होंने लोन पे एक एसयूवी परचेज करी। अब उसके बाद 32 में उनको एक बॉय भी हो गया, एक बेटा भी हो गया, तो फैमिली कंप्लीट हो गई। 28 में बेटी हो गई, 32 में बेटा हो गया, लाइफ सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद 33 में उन्होंने एक बंगलो भी ले लिया, एक विला परचेज कर लिया। कुछ जो उन्होंने एसआईपी स्टार्ट की थी 23 में, कुछ उसमें से बंद कर ली, कुछ पैसा डाउन पेमेंट के लिए काम में ले लिया, और उन्होंने अपना एक घर भी ले लिया। अब आप देखें, बढ़िया आराम से फैमिली है, घर हो गया, गाड़ी हो गई, ठीक है, दोनों पे थोड़ी बहुत इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, और 2 बच्चे हो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 33 में ये होने के बाद 51 में जब उनकी एज 51 हुई, उनकी बिटिया की एज अराउंड 23 हो गई, और वो ग्रेजुएट हो गई। 55 की एज में बेटा भी ग्रेजुएट हो गया, और उनकी बिटिया की शादी कर दी। 58 में वो रिटायर भी हो गए, और उन्होंने अपने बेटे की शादी भी कर ली। अब इससे बढ़िया और इससे शानदार किसी लाइफ तो किसको मिलेगी, कि साहब बेटा हो गया, बेटी हो गई, घर हो गया, गाड़ी हो गई, बेटे बेटी की पढ़ाई हो गई, और रिटायर्ड होते होते दोनों की शादी भी हो गई।
शानदार, मतलब इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि कोई बढ़िया लाइफ होगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो, कि एट द एज ऑफ 35 जो वो जिस एसयूवी जो उन्होंने परचेज की थी उसमें कहीं जा रहे थे, एक कार एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद जो उनके जो चारों गोल्स हैं, यानी कि दोनों बच्चों की पढ़ाई, दोनों बच्चों की शादी, उसका क्या होगा? जस्ट बिकॉज ही वॉज मिस्टर टैलेंटेड। तो उन्होंने क्या किया था, जब अपनी गोल प्लानिंग करी थी तो उन्होंने एक टर्म प्लान परचेज कर लिया था फॉर 2 करोड़ ऑफ रुपीज। अब ये कई बार लोगों को लगता है ये 2 करोड़ का टर्म प्लान यानी कि प्रीमियम कितनी भर रहा था, हो सकता है वॉज इनटू एमएनसी तो शायद उनकी प्रीमियम जो भी थी उनकी शायद सैलरी अच्छी थी तो वो भर सकते हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई ओवर हेयर कि जो टर्म प्लान होता है अगर आप उसको कम एज में परचेज कर लेते तो प्रीमियम बहुत ही नॉमिनल आती है। जैसे इस केस में इनकी अगर ये 23 की एज में 2 करोड़ का कवर लेते या इन्होंने जो लिया था, इनको ये सालाना प्रीमियम पड़ रहा था सिर्फ 32,000। तो 32,000 में ही गॉट अ कवर ऑफ 2 करोड़, और ये एज इनकी जितनी भी होती इनको प्रीमियम उतना ही देना था। दिस इज द मेन फीचर ऑफ टर्म प्लान। तो ये विदाउट एनी सेकंड थॉट्स आपको जैसे ही मौका मिले या जैसे ही आप अर्निंग स्टार्ट करें, टू बी वेरी फ्रैंक, आप जैसे ही अर्निंग स्टार्ट करें आपको एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि टर्म प्लान से मुझे क्या मिलेगा। टर्म प्लान कोई भी अपने लिए नहीं लेता है, अपनी फैमिली के लिए लेता है। टर्म प्लान आपके लिए नहीं होता है, ये आपकी फैमिली के लिए होता है। तो अगर आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं तो आपको अपनी फैमिली के लिए एक टर्म प्लान बिल्कुल परचेज करना है। अब लोग मुझे ये भी कहते हैं कि टर्म प्लान किस किस के लिए होना चाहिए। जैसे फ्यू डेज बैक अ पर्सन कॉल्ड मी अप एंड ही वाज आस्किंग क्या मैं मेरा बेटा जो कि 5 साल का है मैं उसके लिए टर्म प्लान ले लूं क्या? अब नाउ पर बॉय ऑफ 5 इयर्स, क्या उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है? तो उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है तो उसको टर्म प्लान की भी जरूरत नहीं है। तो इसका अदर वे अराउंड आप इसको ये भी दे सकते हैं कि जिसके ऊपर भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि उसको कोई पैसा कमा के किसी को देना है। इसका मतलब वो पैसा कमा रहा है और कमा सकता है और अगले साल कुछ सालों तक वो कमाएगा। उन सबके ऊपर ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गई है कि वो पैसा कमाएंगे, और वो जब वो पैसा कमाएंगे तो वो कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती किसी भी कारण से, और वो पर्सन ही इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट्स हैं उनको तो पैसों की जरूरत पड़ेगी, और वो जरूरत पूरी होती है एक टर्म प्लान की। ओके, ये तो हो गया टर्म प्लान। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो ज्यादा बात करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। कोविड ने सबको बता दिया कि भाई वाई हेल्थ इंश्योरेंस इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। सबको पता है मेडिकल कॉस्ट इज राइजिंग, इट कैन नॉट बी पोस्टपोन। कई बार क्या होता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया नहीं होता पर अपने फाइनेंशियल प्लान में आप कुछ सेविंग कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और पता लगा घर में कोई बीमार पड़ गया, तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। तो जब वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है तो आपको वो पैसा निकाल लेते हैं। तो बेटर है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखा है, एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन। बट ठीक है, ये न्यू रिजीम में कोई बहुत ज्यादा काम आया नहीं आया, आई डोंट नो। बट ठीक है, दिस शुड नॉट बी द मेन रीजन। मेन रीजन पहले तीन है। तो मोटा मोटा आपकी जो मंथली सैलरी है उसका कम से कम 25 to 30 टाइम्स तो आपको मंथली आपको एक सम एश्योर्ड लेना चाहिए मेडिक्लेम। और जो पिछला था क्या नाम है, टर्म प्लान, टर्म प्लान के लिए आपको आपकी मंथली सैलरी का कम से कम 180 to 200 टाइम्स, यानी कि अगर आपकी सैलरी लेट से 50,000 है तो आपको कम से कम 90 लाख से 1 करोड़ का कवर ले, और बहुत महंगा नहीं आता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। कोई पता है हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू, इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अब मैंने एक चीज बोली थी भाई, कॉस्ट ऑफ डिले। कई यंग एज में लोग होते हैं जो कहते हैं यार अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है यार, राइट नाउ आई एम जस्ट 26 27, रिटायर तो मैं 60 में होगा, इतनी जल्दी मैं सेविंग क्यों करूं? तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है फॉर कैलकुलेशन एंड टू अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि लेट्स से ये जो मिस्टर टाइगर है, ये 25 की एज में सेविंग्स पे हैं, बैठते हैं समझते हैं कि क्या करना है। तो इन्होंने मंथली एक एसआईपी स्टार्ट की, लेट्स से 10,000 रुपीज। 12% अगर उसने रिटर्न दिया तो टिल 55 वो 10,000 हर मंथ दे रहे हैं। उस साल का देंगे 1,20,000, 10 ईयर्स का देंगे 12 लैक्स, और 30 ईयर्स का देंगे 36 लैक्स। ये 36 लैक्स 30 ईयर्स के बाद 12% रिटर्न से बन जाएगा लगभग
3.5 करोड़। ठीक है, अब लेट्स मान लेते हैं कि इनके बड़े भाई साहब हैं मिस्टर ऋतिक, वो उनसे पूछते हैं यार भाई तू क्या कर रहा है, मैंने तो तू तो कह रहा था तेरे 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसने उनको समझाया कि अगले 30 साल के अंदर मैं 36 लाख दूंगा। उसने कहा "वाह यार ठीक है, तू दे रहा है तो मैं भी दे देता हूँ"। पर अब क्या है कि ऋतिक की एज हो गई है 35 और उनके पास 55 के लिए बचे हैं 20 साल। तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, 36 लाख को डिवाइड कर देते हैं अपन, 20 ईयर्स इंटू 12 यानी कि डिवाइड बाय 240। तो 240 से डिवाइड करने पे मंथली एसआईपी इंस्टॉलमेंट आई 15,000 की। उसने कहा ठीक है मैं 15,000 कर लेता हूँ। बट नाउ यू कैन सी द एक्यूमुलेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द टेन्योर, इनके केस में सिर्फ 1.5 करोड़ है और यहाँ पे 3.5 करोड़। आप देखेंगे दोनों ने इन्वेस्टमेंट बराबर किया है, लेकिन दोनों का जो एंड रिजल्ट है उसमें 2 करोड़ का फर्क। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपको वही समझना पड़ेगा जो मैंने पहले बात की थी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो साल के साथ आती है। इनको इनका पैसा कंपाउंड हुआ 20 ईयर्स के लिए, इनका पैसा कंपाउंड हुआ 30 ईयर्स के लिए। पैसा भले दोनों ने बराबर डाला लेकिन दोनों की एंड वैल्यू में 2 करोड़ का फर्क। तो अगर सपोज ऋतिक भाई साहब भी मेरे पास आते और कहते कि भाई मेरे को भी 5 करोड़ इन्वेस्टेड, मतलब मेरे को मेरी वैल्यू चाहिए, तो इनकी जो आती मंथली, तो इनको 35,000 हर महीने करने थे, इन्होंने किए थे 15,000। तो इसलिए जितना जल्दी उतना बढ़िया, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है अपने पास, वो टाइम ही है। तो वो टाइम अगर आपके पास है, उस टाइम को अगर आप सही से यूटिलाइज करके और अपने इन्वेस्टमेंट को आगे लेके जा सकते हैं, तो उस तरह की वेल्थ क्रिएट होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग व्हाई यू शुड स्टार्ट अर्ली, एंड दिस इज द कॉस्ट यू आर गोना पे इफ यू आर गोना डिले लाइक एनीथिंग। तो अब ये आपको जल्दी क्यों स्टार्ट करना है भाई? अभी क्या है कि एज कम में कई चीजें ऐसी लगती हैं कि यार अभी तो मेरी एज बहुत कम है, लेकिन लेट मी टेल यू, जो 21st सेंचुरी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सी आप अगर पहले देखेंगे तो पहले ना तो इतनी जरूरतें थी, ना इतनी इच्छाएं थी, ना इतने एवेन्यूज थे, ना इतनी कमाई थी। तो जब ये कुछ भी नहीं था तो सब कुछ बहुत अच्छा था। आज की तारीख में ये अनलिमिटेड हो गए, इनकी कोई लिमिट नहीं है। हर कंपनी में मार्केटिंग की टीम इसी कोशिश में लगी हुई है कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकाले। एंड द प्रॉब्लम इज कि आज की तारीख में जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की, अभी इंडिया की एवरेज एज इज समवेयर अराउंड 28 ईयर्स। आज की तारीख में जो यंग पॉपुलेशन, ये सब के सब एक स्टेज पे रिटायर होने वाले हैं। तो जब ये रिटायर होने वाले हैं और अगर आज से इस बारे में नहीं सोचा, तो कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्यों आएगी? प्रॉब्लम इसलिए आएगी कि इंडिया की, जैसे मैंने आपको बात की थी, कभी किसी जमाने में एफडी और पीपीएफ भी 10 और 12% रिटर्न देता था। जैसे 1980 में अगर अपन बात करें, इस चार्ट ये आपको बता रहा है कि नॉर्मली हर 10 साल के अंदर जो इंटरेस्ट रेट्स होती है वो 2% से कम हो जाती है। जैसे अगर अभी अपन बात करें 2010 के अराउंड जो रेट्स थी वो 8% के आसपास थी। अभी जो है बीच में 6% हो गई थी, किसी कारणों से वापस बढ़ी है। बट हाँ, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे वापस कम ही होनी है, बढ़नी तो नहीं है। यानी कि आज की तारीख में जो आपको एफडी पे रेट्स मिल रही है, शायद वो इसके बाद बहुत मुश्किलें जिंदगी में वापस देखने को मिलेंगी। तो अगर आज की तारीख में कोई पर्सन है जिसकी एज है लेट्स से अराउंड 25 ईयर्स, अब उसके सामने 35 ईयर्स ऑफ जॉब। अब जब वो पता लगा पैसा इकट्ठा तो कर रहा है और उसको है कि मैं पैसा इकट्ठा करके जब रिटायर होऊंगा एफडी में डाल दूंगा और एफडी से इंटरेस्ट से मेरा काम चल जाएगा, तो ऐसा उसके सामने शॉकिंग हो सकता है कि जब वो रिटायर हो 2050 या 2055 में, तब इंटरेस्ट रेट इंडिया में हो 0। ये सुन के चौंकने की जरूरत नहीं है कि ये 0% भी हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसे कई देश हैं जैसे जापान, बीच में यूके और यूएस में भी यही हालत थी कि सिर्फ आधा 1% एफडी पे ब्याज मिलता था। तो ऐसा इंडिया में भी अगले 25-30 साल में, 30-35 ईयर्स में हो जाए, तो चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो होगा इंटरेस्ट के साथ। दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो खर्चे हैं वो तो बढ़ने ही है। भाई आने वाले टाइम में आपको जो खर्चे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो तो बढ़ ही रहे हैं, वो तो कम होने ही नहीं है। तब आपको ये समझना होगा कि जब एक तरफ आपके पास जो एवेन्यू है, जो पैसा है, वो अगर एफडी में पड़ा है, या ये अपन मान के चल रहे हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट वहीं पड़ा रहेगा, वहां पे तो इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, और आपके पास खर्चा है वो तब तक आज जो 1.5 लैक्स का है वो लगभग 2050 में 12 लाख का हो जाए। अगर अपने अपने पैसे को आज से ही काम पे नहीं लगाया,
if we allow them, मतलब your money to sleep in the bank account, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने सामने खड़ी है। अपने को इस चीज को आज ही समझना पड़ेगा। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी लाइफ में पैसा क्या है, आप जो पैसा कमा रहे हैं वो आपके लिए क्या करेगा। आई नॉर्मली टॉक टू टेल माई इन्वेस्टर्स कि आप आज ही अपने पैसे को जो सेविंग या इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं उसके ऊपर एक नामकरण करें। जैसे भाई किसी के भी घर में बच्चा पैदा होगा, फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इज अपन उसका नाम रखें, राइट। अपन उसका नामकरण करें। वैसे आपके हर इन्वेस्टमेंट, हर सेविंग का एक नामकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नामकरण नहीं होता है तो एक बहुत कंफ्यूजन होती है, आपको नहीं पता लगता है कब आप कौन सा पैसा किस रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर जब उस रोल की, जब उस पैसे की जरूरत पड़ती है, तब आपको लगता है कि अरे यार वो तो मेरे पास था, वो मैंने तब काम में ले लिया, तब नहीं लिया होता तो अब काम में आ जाता। ये कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने हर इन्वेस्टमेंट, हर सेविंग का एक नामकरण करें कि भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ और इसका एंड रिजल्ट से मैं क्या करूँ। अब कई बार लोग कहते हैं कि यार सर आप बहुत पैसे का ये करना है, पैसे का वो करना है, ये करना है। हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास तो पैसा बचता ही नहीं। तो जब वी आर नॉट एबल टू सेव मनी, जब हमारा पैसा, हमारी सेविंग्स हो ही नहीं रही है, तो ये सब इतनी लंबी लंबी बचत की सारी बातें तो बेमानी सी हैं। और ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल बात है और मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अपन ये बोल के अपने आप को छोड़ नहीं सकते, अपने आप को बाहर नहीं निकल सकते कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू डू। लेट मी गिव यू एन सोल्यूशन कि ये कैसे कर सकते हैं। ये हर इंसान के लिए पॉसिबल है, जो भी इंसान बजट बना सकता है। आपको पता है हिंदुस्तान की सरकार भी बजट बनाती है, आपने अपने मम्मी पापा को भी देखा होगा कि वो भी बजट बना के चलते हैं, और आपको भी बजट बनाना पड़ेगा। अभी क्या है कि अभी इंडियन इकोनॉमी थोड़ी अच्छी चल रही है, इसलिए सबको जो सैलरीज हैं वो थोड़ी हायर साइड पे मिल रही हैं। एंड आई कंप्लीटली एग्री कि उसके लिए खर्चे करने के लिए एवेन्यूज उससे भी ज्यादा हैं। आपको भले पैसे थोड़े ज्यादा मिल रहे हो, लेकिन उसके खर्चा करने के लिए ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी पैसा मिल रहा है, आपके जो भी खर्चे हैं आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपसे सेविंग नहीं होती है तो आप उसको लिखें, समझें कि भैया ये खर्चा जरूरी है कि गैर जरूरी है। अगर जरूरी है तो बिल्कुल करना है, अगर गैर जरूरी तो धीरे धीरे उसमें रिड्यूस इट। एंड देन यू हैव टू ऑटोमेट योर सेविंग्स। जो भी आप सेविंग कर रहे हैं उसको ऑटोमेट कर। अगर आपने ये सोचा कि भाई मैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे सेविंग करूंगा, तो वो हो ही नहीं पाएगी। आप बोले मैं साल के एंड में ये पैसा बचा लूंगा, वो खाते में बचेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, जस्ट बिकॉज अर्निंग, यू आर अर्निंग ऑन अ मंथली बेसिस, हर महीने आपको सैलरी आ रही है। अगर आप बिजनेस में, तो मैं कहता हूँ आप रोज कमा रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा आप रोज की बचत करें। अगर आप सैलरी में, आप जॉब में हैं और आपको मंथली सैलरी आ रही है, तो मंथली सेविंग करें, लेकिन ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे खाते में बचेगा तब मैं किसी को कॉल करूंगा और मैं, या फिर मेरे पास मोबाइल ऐप है मैं उसमें क्लिक करके उसमें पैसा डाल दूंगा। ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है, और उसका एंड रिजल्ट कोई बहुत लुक्रेटिव नहीं होता। आपको अपनी सेविंग्स ऑटोमेट करनी पड़ेंगी। अगर आप सेविंग मोड में जाना चाहें तो आप आरडी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली निकल गई। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एनपीएस कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। आप उस दिन का इंतजार या उस पल का इंतजार नहीं कर सकते कि साहब मैं कर लूंगा, बहुत मुश्किल है आज की तारीख में। अब ये सारी चीजें तो हो गई, इस सारी चीजों को करना अगर इतना आसान होता तो आज की तारीख में हर इंसान वेल्दी होता। सबके पास बहुत सारा पैसा होता है, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको एक इंसान की जरूरत पड़ती है जो आपकी मेंटरिंग कर सके। मेंटरिंग मतलब क्या होता है, सिर्फ आपका रास्ता बताना, आपका हाथ पकड़ के चलना, और कहीं भी अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आप गिरने वाले हैं तो आपको संभालना। तो हम कहते हैं कि भाई आपको फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों चाहिए, क्यों? क्योंकि पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इट्स 95% बिहेवियर एंड ओनली 5% साइंस। आप जो भी किताबों में पढ़ेंगे वो साइंस है, और उससे आपकी वेल्थ बनने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 5% है, क्योंकि उसमें सारी साइंस लिखी हुई है। जो एक्चुअल पैसा बनता है वो बिहेवियर से बनता है।
आपने खुद ने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी बहुत अच्छी सैलरी कमाई, पर रिटायरमेंट में उनके पास पैसा बहुत ज्यादा बचा ही नहीं। और कई ऐसे लोग भी देखे होंगे जो आपको समझ ही नहीं आया कि इसने ऐसा क्या कमाया कि रिटायरमेंट पे इसके पास इतना पैसा बचा। इट्स ऑल बिहेवियर। इट्स ऑल बिहेवियर कि आप अपने पैसों के साथ कैसा बिहेव करने वाले। और आपका बिहेवियर, मैंने शुरू में ही कहा था, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज लेस अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स मोर अबाउट पर्सन। आपको एज अ पर्सन एक ऐसा इंसान को ढूंढना है जो आपको एज अ आपके फाइनेंशियल पार्ट को या आपके फाइनेंशियल लाइफ को बहुत अच्छे से समझ सके, और आपकी हर उस जर्नी, आपके हर उस पड़ाव पे आपकी मदद कर सके जब जब आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है। और ये मान के चलिएगा कि ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको अभी 5 मिनट के लिए अगर महाभारत में लेके जाऊं, तो महाभारत के अंदर जब महाभारत का युद्ध होना था, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम श्री कृष्णा ने ऑप्शन दिया था टू कौरव्स एंड पांडव्स कि भाई देयर आर टू ऑप्शन, इधर यू कैन ऑप्ट फॉर मी, बट हाँ मैंने कसम खा ली है कि मैं कोई भी इस युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एंड सेकंड ऑप्शन वाज हिज नारायणी सेना, एक ऐसी सेना जो आज तक कोई युद्ध हारी नहीं थी। ये दो ऑप्शन दिए गए। और उस युद्ध के अंदर पांडव को पहला ऑप्शन मिला और उन्होंने श्री कृष्ण को चुना। उन्होंने खुद ने इस चीज को पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा साहब हमने ये अपनी गलतियों से सीख लिया है। लास्ट टाइम जब जो वो चौपड़ का गेम हुआ था, उसमें दे बेसिकली लॉस्ट जस्ट बिकॉज दे डिडंट हैड देयर एडवाइजर विद देम, देयर मेंटोर विद देम। तो अर्जुन ने, अगर आप महाभारत देखेंगे वापस, तो क्लियर यही चीज बोला है कि साहब इतनी तो मेरे में ही ताकत है कि मैं अकेला कौरवों को हरा सकूं, लेकिन हाँ अगर वहां पे मेरे साथ कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरे को एक एडवाइजर की जरूरत होगी, एक मेंटर की जरूरत होगी। और अगर आप उस सीन से 10 एपिसोड आगे जाते हैं तो आप खुद देखेंगे कि उस रणभूमि में, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में एक्चुअली क्या हुआ। और आज अगर एक आम आदमी से पूछो कि भाई पांडव कौरव से जो महाभारत का युद्ध जीते थे, तो लोग उसका श्रेय श्री कृष्ण को देते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता है कि भाई अर्जुन वॉज द रीजन या युधिष्ठिर वॉज द रीजन या भीम वॉज द रीजन। नो डाउट दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, लेकिन जो मेन रीजन बोलते हैं वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, जिन्होंने न अस्त्र उठाया न शस्त्र उठाया, लेकिन उनकी गाइडेंस ही थी जिसकी वजह से पांडव ने कौरव को हराया। तो मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ कि कई बार अपन लोगों को लगता है कि यार मेरे पास मोबाइल ऐप है, XYZ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं जस्ट बटन दबाऊंगा और कर लूंगा, SIP कर लूंगा, इन्वेस्टमेंट कौन सी बड़ी बात है। बट देन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू कि इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट। बिहेवियर को मैनेज करना अगर इतना आसान होता, तो आप सब लोगों को पता है कि रोज सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। कितने लोग कर पाते हैं? बहुत कम लोग कर पाते हैं। जस्ट बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स मोर अबाउट बिहेवियर, इट्स वेरी लेस अबाउट साइंस की कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे जस्ट ऑलरेडी 12:07 हो गया, मेरे को 12:15 तक का टाइम मिला था। तो मैं आपको अब जो भी अपन ने डिस्कशन किया है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि जो पीपल हु आर लिसनिंग टू मी व्हाट एज ग्रुप दे आर। तो मैंने जस्ट एक बेसिक गाइडलाइंस बना दी है। सपोज यू आर इन द कैटेगरी ऑफ न्यू अर्नर्स, की आपकी अभी जॉब स्टार्ट हुई है और अगर 2-3 साल हुए हैं और अभी यू आर सिंगल, तो व्हाट यू शुड डू। एज ऑफ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टर्म प्लान लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने एनुअल सैलरी का 15 टाइम्स बोला है, बट हाँ इसको 18 to 20 करें तो और अच्छा है। दिस इज मिनिमम, 15 टाइम्स तो होना ही चाहिए। टैक्स सेविंग करनी चाहिए आपको, उसके लिए ऐसे प्लान्स लेने चाहिए जो आपकी वेल्थ भी क्रिएट कर सकें और आपका टैक्स भी बचा सकें। एंड देन आपको कुछ SIP करनी चाहिए आपके रिटायरमेंट को दिमाग में रखते हुए। जैसे मैंने आपको बताया, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनेगा। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर न्यू अर्नर्स। अब सपोज सामने बैठा हुआ इंसान है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं, तो उनको टर्म प्लान के साथ साथ एक मेडिक्लेम भी लेना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता उसकी जरूरत कब पड़ेगी। आपको अब जो इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो गोल बेस्ड होने चाहिए। यू शुड नो योर गोल बिफोर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट। जैसे अपन कई बार जब भी ट्रेन में चढ़ते तो पहले पता होता ना अपन कब उतरेंगे, कब मेरा स्टेशन आएगा। वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब उतरना है, और ये मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये मैं किस गोल के लिए कर रहा हूँ। और एक कंटिजेंसी फंड तो किसी भी सूरत में होना चाहिए। अगर नहीं रखा है अभी तक, तो वापस वो कोविड वाला टाइम याद करें और आज ही इसके बारे में प्लान करें। और वो एक लिक्विड फंड या डेट फंड में हो सकता है। ये नॉर्मली 3 से 4 महीने की आपकी सैलरी के बराबर होना चाहिए।
और ये सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर ये सेविंग अकाउंट में है तो ये कब खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि सेविंग अकाउंट का नाम को बोलते अपन बचत खाता है, लेकिन अब वो बचत खाता नहीं रहा मेरे हिसाब से। नाउ इट्स एन एक्सपेंस अकाउंट। उस अकाउंट में जो भी रखा हुआ है वो खर्च ही होना है, वो बचना नहीं है, ये मान के चले। एंड लेट्स से अगर मेरे सुनने वाले अभी अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है, तो उनको जो उन्होंने मेडिक्लेम ले रखा है उसका भूल के भी रिन्यू, मतलब भूलना नहीं है। क्योंकि इस एज में अगर आप एक बार भी अगर अपना, या एक बार मतलब 10 15 20 दिन के लिए भी अगर अपना आप प्रीमियम भरना भूल गए, और आपको अगर कोई क्रोनिक डिजीज है, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस कि मेडिक्लेम कंपनी उसको कंटिन्यू करने देगी। वो खुद भी नहीं चाहती है कि बीमार लोगों को मैं अपने साथ लेके चलूं। वो चाहती है सारे स्वस्थ लोग मेरे पास हों और मेरा क्लेम कम से कम आए। तो आप ये मान के चलें कि भैया ये आप जो मेडिक्लेम पॉलिसी का रिन्यूअल है, ये 10 दिन पहले जमा कराएं, रादर देन वेटिंग फॉर द लास्ट डे। इस एज में नोबडी वुड लाइक टू डिपेंड ऑन देयर यंगर वंस की भाई अब मेडिकल की वजह से हम हमारे यंगर वंस पे डिपेंडेंट है। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लीस्ट ऑफ इंडियंस डू इट इज बेसिकली राइटिंग योर विल। कई बार अपन ये गलती कर देते हैं कि हम हमारी विल नहीं लिखते हैं। मन में ये होता है कि मेरे क्या करना, मेरे तो एक ही बेटा है या एक ही बेटी है, जो है सब उसका है। बिल्कुल सही बात है, जो है उसका है। लेकिन आपको पता है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी नॉमिनी मेंशन नहीं है? क्या वो पता है कि जो आपका गोल्ड सिल्वर या जो भी रखा हुआ उसके ऊपर कोई नॉमिनी मेंशन? ठीक है, मैं मानता हूँ एफडी, म्यूचुअल फंड, जो भी ऐसे पेपर एसेट्स है उन सब में नॉमिनी मेंशन होता है। लेकिन क्या आपकी प्रॉपर्टी पे कहीं नॉमिनी का नाम लिखा हुआ है? और अगर आपके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो मैं मानता हूं कि आप उनके उनके लिए एसेट छोड़ के जाना चाहेंगे और टेंशन नहीं छोड़ के जाना चाहेंगे। तो बेटर है आप अपनी विल लिखें, क्योंकि आपने अगर ऐसा कोई केस देखा है कि विल नहीं थी और कितनी प्रॉब्लम आई, अगर देखा है तो बहुत बढ़िया, आपको पता है इसकी वैल्यू। और नहीं देखा है तो टेक माय वर्ड्स कि बहुत प्रॉब्लम होती है। लास्ट लास्ट पॉइंट ये है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कितना कंज्यूम करने वाले हैं। कहने का मतलब, लेट्स से एक रिटायर्ड पर्सन है और उसके पास 100 रुपए हैं। अब कई बार क्या होता है, वो कहता है चूंकि मेरी इतनी हायर एज है मुझे इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत। यस, वेरी राइटली सेड कि मुझे क्या जरूरत। बिल्कुल सही बात है, मैं भी यही कहता हूँ कि आपको जरूरत नहीं। लेकिन क्या आप ये श्योरिटी से कह सकते हैं आपके पास जो पैसा है वो सारा का सारा आप ही के काम आने वाला है? कहता है नहीं, और नहीं आएगा तो मेरे भाई यंगर वंश में पास ऑन हो जाएगा। मैं कहता हूँ एग्जैक्टली। जब आपको पता है, लेट्स से एक रिटायर्ड पर्सन है, उसकी एज है 70, और उसके पास एक्स अमाउंट, एक्स को एक बार मैं 100 के लिए मान लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि यार इसमें से मैं तो 20 से 25 ही यूज कर पाऊंगा, रेस्ट 70 to 75 पैसे जो परसेंट ऑफ मनी है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। तो ठीक है, मैं कहता हूँ भगवान ने आपकी उम्र लेट्स से 100 साल लिखी है, तो अब आपके पास 30 साल है, और 30 साल के बाद वो पैसा आपके यंगर वंश में पास ऑन होएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ 30 साल बाद ही पास ऑन करना। लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे उस पैसे को कंपाउंडिंग की ग्रोथ देना? आप नहीं चाहेंगे कि अपने यंगर वंश को उतना दे सके जितना वो पैसा अपनी ताकत से कमा सकता है? क्यों उस पैसे को आप पूरा का पूरा एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल के बैठे हुए हैं कि मैं इस एज में रिस्क नहीं ले सकता? मैं कहता हूँ आपको जो 20 25 रुपीज यूज करना है उस पर बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। लेकिन बाकी के 70 75% पैसे को तो उसको अपनी ताकत को आजमाने दीजिए और उसको बढ़ने दीजिए जितना वो बढ़ सकता है। ये इस एज में डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, वो सारा का सारा पैसा पड़ा हुआ है और वो कहीं ना कहीं, आप भी टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, आप इस एज में भी टैक्स भर रहे हैं, और इन्फ्लेशन पोस्ट टैक्स वो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर रहे हैं। तो नो डाउट आप एक हैंडसम पैसा नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएंगे, पर उस समय इन्फ्लेशन के हिसाब से वो पैसा बहुत बड़ा नहीं होगा। दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू शेयर इन दिस सेशन। आई बिलीव मेरा टाइम भी लगभग 12:15 तक का मिला था मेरे को, 12:15 हो रही है। सो अब नाउ दिस लास्ट स्लाइड ऑफ माइंड विच सेज कि वेल्थ क्रिएशन करना है तो उसका मूल मंत्र बहुत ही सिंपल है। अगर आपका लाइफ का पैटर्न ये चल रहा है कि भाई मेरे पास जो इनकम आ रही है उसमें से मैं कुछ खर्च कर रहा हूँ, जो बच जा रहा है वो सेविंग है, तो ये मान के चलें आप कभी वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाए। आपको अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको जो भी इनकम आ रही है उधर से आप अपनी सेविंग्स ऑटोमेट करें। अब जो बच रहा है आप उसको खर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं आएगा, रेस्ट अश्योर्ड। बट नाउ द थिंग इज कि अब आप उस राह पे चल पड़े हैं जहां पे वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से इन दिस सेशन।
If you have any question and answers, you can just ask me. वैभव जी. यस सर। सर वैभव टर्म जी, प्लान कितने करोड़ का लेना चाहिए सर? मैंने आपको एक बिल्कुल वो बताया। वैसे तो देखिए, मैं आपको फिर वही कहूंगा कि ये सब चीजें डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। बट एक हाँ, थंब रूल अगर मैं बताऊं तो आपकी एनुअल इनकम का 180 टू 200 टाइम्स। इसके पीछे भी लॉजिक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, सर वैसे पूछनी नहीं चाहिए, पर मैं आपकी एनुअल इनकम एक रफली पूछ सकता हूँ? या चलो मैं छोड़ो, मैं एक जनरल एग्जांपल पकड़ता हूँ। लेट्स से सपोज अगर किसी की एनुअल इनकम 10 लाख है, तो मैं कह रहा हाँ, हूँ अंडर 10 लाख। हाँ सर। मैं एक बार 10 लाख पकड़ लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ तो मैं कह सर। रहा हूँ अगर 180 टू 200 टाइम्स होना चाहिए, इसका मतलब समवेयर अराउंड कितना हो गया वो 10 लाख के हिसाब से? 10 लाख इज द एनुअल इनकम, सॉरी मैं मंथली इनकम की बात कर रहा था। अगर एनुअल इनकम की बात करें तो 18 टू 20 टाइम्स, तो लगभग ये 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ के आसपास होता है। हाँ ठीक है? सर। तो 2 करोड़ सर। में क्यों बोल रहा हूँ कि लेट्स से अगर आप 10 लाख रुपए का इनकम कर रहे हैं, पोस्ट टैक्स पोस्ट सब कुछ, तो आपके अकाउंट आपके हाथ में लगभग आ रहा होगा 65 टू 70 थाउजेंड। ठीक है? हाँ सर। क्योंकि टैक्स भी सर। कटता है, पीएफ भी कटता है। हाँ सर। ठीक है, और मैंने वैसे कहा था। हाँ जी. सर, वैसे टर्म प्लान लें तो कौन से मतलब बैंक से अच्छा रहेगा सर? तो मैं तो कहता हूँ टर्म प्लान आपको लेना है तो 4 बड़े ब्रांड्स हैं इंडिया के अंदर, जो मैं मानता हूँ कि मैं रहूँ ना रहूँ वो रहेंगे। भाई हाँ सबसे सर। सबसे बड़ा है LIC, देन SBI, HDFC एंड ICICI। ये चार ऐसे बड़े ICICI। नाम। हाँ, ये चार ऐसे बड़े नाम हैं जो जिनका बैंक्स भी है। और LIC तो कहीं जाने वाला है ही नहीं, तो SBI, LIC, HDFC एंड ICICI, ये चार में से अगर आप ले रहे हैं, वैसे टर्म प्लान किसी का भी लें, IRDA है इन पिक्चर। अगर उसने अपनी वो लाइबिलिटी ले ली है तो वो कंपनी कोई भी परचेस करेगा तो वो लाइबिलिटी भी लेगा। बट फिर वो कहते हैं ना कि अपन टर्म प्लान ले ही जब पीस ऑफ माइंड के लिए रहे, तो फिर ऐसी कंपनी से ही लेना चाहिए जहां आपको पीस ऑफ माइंड मिले तो सही। हाँ सर, ये तो है सर। तो भाई ऐसी कंपनी का ले लिया जो आपको खुद को ही डाउट है कि वो पैसा तब तक मतलब रहेगा, या वो कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, तो फिर आपके मन में वो डर रहेगा। सर, ये बात तो है सर। ब्रांड तो होना ही चाहिए सर। हाँ, तो आपका क्या वो मन की शांति के लिए ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट हाँ सर। Okay. Thank you, sir, for explaining topic in simplifying way and presentation. So now I request all the participants and delegates, if you have any questions, you can unmute yourself and ask directly, or you can put your questions in the chat box also. सर दिस इज माहिमा यार। हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा सब चीजों है। में हाँ जी. कुछ कुछ इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो सही उसका बात. क्या बेसिस रहता है और मतलब कैसे हम वो चीज डिसाइड कर सकते हैं? See, diversification means basically, putting your investments in different baskets, right? तो राइट। आपका जो डिफरेंट बास्केट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? वो कुछ सेविंग्स होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगे। तो सेविंग्स में तो आपका ऑलरेडी जैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं आप, उसी कई बार FD कर देते हैं। कुछ पैसा आपका PF में चला जाता है, कभी आप PPF कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अपन डाइवर्सिटी के नाम पे कई बार इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल मिस आउट हो जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट के नाम पे होता है तो जैसे नॉर्मली बीइंग फीमेल्स वो कहते हैं कि हमने गोल्ड सिल्वर ले लिया। और गोल्ड सिल्वर होता है वो कंजम्पशन के रूप में, यानी कि आपने उसकी ज्वेलरी बना, ज्वेलरी बनाने के बाद वो कंजम्पशन हो गया, वो अब इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। तो आप या तो एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब प्रॉपर्टी के साथ भी क्या प्रॉब्लम है कि वो अभिमन्यु वाली प्रॉब्लम, यू नो हाउ टू मूव इन, बट हाँ निकलना बहुत मुश्किल है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपको ये तो करना है कि डिफरेंट एसेट क्लास में डालना है, बट उसमें उसकी आपकी लिक्विडिटी जो एक एंगल है उसको भी हमेशा कंसिडर करके चलना। तो ओके। आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए भाई कुछ आपके पोर्टफोलियो में FDs होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। कुछ आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स होना चाहिए इक्विटी के लिए। अब प्रॉपर्टी क्या कुछ नहीं होती है, जैसी प्रॉपर्टी आती है ना वो आपके नेटवर्क का कई बार 40 to 50 वसूल हो जाती है मिनिमम सेट। राइट। तो हम्म। वो तब होना चाहिए जब आपके पास अच्छा खासा डाउन पेमेंट के लिए हो, कि यूं नहीं पता लगा कि प्रॉपर्टी तो ले ली, अब मेरी नेक्स्ट 15-20 ईयर्स उसकी EMI भरने नहीं जाने वाली। हम्म।
उस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड देन वापस मैं वही चीज कहूंगा, दिस पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इज मोर पर्सनल देन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक रूल ऑफ थंब ऐसा नहीं है कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको अगर और ज्यादा डिटेल्स चाहिए कि भैया कैसे आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप आराम से हमें डिस्कशन कर सकते हैं। मैं शायद वो स्लाइड शेयर करना रह गई, आप आराम से कभी भी कॉल कर सकते हैं। दिस स्लाइड हैज माय नंबर। तो अपन आपके बारे में बात कर सकते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर यू। गॉट इट। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you so much, sir, for good session, sir. We will be waiting for your next session, sir. थैंक यू सर। थैंक यू पुनीत जी। I repeat, if anyone have any questions, you can ask directly or you can put in the chat box. I think, sir, there is no more questions. So can we move ahead, sir? Yeah, no problem. It's I'm done with my session, so Yes, okay. So requesting you, sir, to please stop your presentation, sir, so I can okay. leave. Thank you. So our next session is on 27th of January. ICS is pleased to provide you all its research and development, integrated management system, QMS, EMS, and OHSS, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu, and Hindi. For reading any of the above book, please contact Ms. Sushma Kindalkar on the given contact details. Feedback form. Please register on www.sadgunsag.org and go in your login and give your valued feedback to us. So thank you, Puneet sir. Thank you all the participants and delegates for the being part of the Sadgun Sangh. So now it's time to officially close the session. Thank you, everyone. Have a good day.